Hello everyone, my name is Main Jinjinwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to discuss with you motion in a plane questions. Yesterday we did the theory part, like I told you what the motion in a plane basically tells us. Like in motion in a plane, we basically deal with the vector quantities. Like we deal with how we add the vectors, how we subtract them. Means like we try to talk in a way that not only we should know the magnitude but also the direction. So yesterday we did all that thing and we did till 6 questions. So today I am starting from question number 7. So let's start. See, question number 3.7 says that given a plus b plus c plus d is equal to 0, which of the following statements are correct? So we have to tell which are correct and which are not. So we are given a diagram and we have to tell which options are correct. So first option is A, B, C, and D must each be a null vector. So this is absolutely false because it is possible that B vector is equal to minus of A vector and D vector is equal to minus of C vector. So then also adding all the four, it will become 0. So it is not necessary that each vector should be null vector. So A is false. The magnitude of A plus C equals the magnitude of B plus D. This is also not true. This is saying only about magnitude. Yes, the magnitude of A plus C is equal to the magnitude of B plus D. How? So let me write it. See, what we are given? We are given A plus C plus B plus D equal to 0. I can write it in this way, equals minus of B plus D. Okay, so now we can see easily that only the sign difference is there and the magnitude of both is same. Then only this thing holds. Otherwise, this will not hold. So the magnitude of A plus C is equal to the magnitude of B plus D is correct. See what is saying, the magnitude of A vector can never be greater than the sum of magnitude of B vector, C vector, and D vector. Obviously, it is true. अगर हम ऐसा माने कि A vector magnitude is not greater than B vector plus C vector plus D vector, अगर ये होगा तो वेक्टर सम कभी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ए का वेक्टर कभी भी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर से बड़ा नहीं हो रहा है तो फिर ये सम कभी ट्रू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बी सी डी ट्रायंगल बनाएंगे तब भी बी प्लस सी प्लस डी 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो स्टेटमेंट है सी वाला, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और डी वाले में क्या बोला है, बी प्लस सी मस्ट लाई इन अ प्लेन of A and D, and if A and D are not collinear, and in the line of A and B plus C must lie in the plane of A and D if A and D are not collinear, and in the line of A and D if they are collinear. So ये भी correct है, क्योंकि अगर B plus C A plus D के plane में नहीं होंगे तो फिर वेक्टर सम 0 नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर अपन लोग ऐड करेंगे तो वो कभी 0 हो नहीं सकता। तो बी प्लस सी ए और डी के प्लेन लाइक करना चाहिए। अगर ए और डी नॉन कोलिनियर है तभी हम उसको 0 कर सकते हैं, और अगर कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है ए और डी की लाइन में लाइक करना चाहिए, वरना फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, डायरेक्शन के चक्कर में अपन लोग उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो जो बी और डी वेक्टर है वो भी इन्हीं के प्लेन में करनी चाहिए। ऐसे कभी कोई कैसा हो जाएगा, कोई कैसा हो जाएगा, तभी चलो कैंसिल हो सकते हैं, वरना कैंसिल नहीं हो सकते। और अगर ये ए और डी एक ही लाइन में, मान लो एक ऐसा है दूसरा ऐसा है, तो बाकी दो को भी इसी लाइन में होना पड़ेगा, वरना फिर ये चीज कैंसिल नहीं हो सकती। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो डी पार्ट भी करेक्ट है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको लिख लेते हैं। So let us write it down. Only A is not correct and all the three statements are correct. So A is not correct, B is correct, and C is also correct, and D is also correct. ठीक है, तो आई होप तो समझ में आ गया होगा, सिंपल था क्वेश्चन था ये, तो उसमें कुछ था नहीं एज सच। 3.8 में चलते हैं। 3.8 में क्या बोला है,
3.8 में बोला 3 girls skating on a circularized ground of radius 200 meters starts from a point P on the edge of a ground and reaches a point Q diametrically opposite to P following different paths as shown in the figure. तो 3 गर्ल्स है वो अलग अलग पाथ को फॉलो करके P से Q पे जा रही है. एक को फॉलो कर रही है, दूसरी B को, तीसरी C को. ठीक है, as simple as that. What is the magnitude of the displacement vector for each? तो अपने को पूछता है तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो ये मैंने आपको कल बताया था. I told you yesterday that displacement vector between 2 points is always the least distance between 2 points. हम 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे भी जाएं, कैसे भी ट्रेवल करें, हम ए से बी कैसे भी ट्रेवल करें, लेकिन जो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू ओनली. सो जो अपना पी क्यू होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. तो अपने से क्या पूछा, अपने से पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, जो पी क्यू का मैग्नीट्यूड है. पी क्यू कितना है, अपने को डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना 200, तो पी क्यू डायमीटर है, तो पी क्यू हो जाएगा 400. तो इसका आंसर सीधे सीधा 400 हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी. तो इसको लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is always the shortest distance between 2 points. ठीक है, so it is equal to 2 times 200, that is 400 meters. ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा. इजी चीज थी. फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट. ऑब्वियस सी बात है कि बी वाली गर्ल के लिए वो उसके बराबर होगा, क्योंकि बी वाली गर्ल पी क्यू के अलॉन्ग ही गई है, बाकी ए और सी में अलग अलग पाथ से गए हैं. सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टू सेकंड पार्ट इज बी. मतलब ये तो अपन लोग डायग्राम से देख के बता सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3.8 हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 3.9 में क्या बोला है, a cyclist starts from center O of a circular park of radius 1 kilometer. सेंटर चालू करता है, reaches the edge of the park, पार्क के edge पे पहुंचता है, and then reaches the edge P of the park, edge P of the park पे पहुंचता है. उसके बाद then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown in the figure. तो मतलब क्या कैसे चलता है, वो O से चालू करता है, O से P पे जाता है, फिर P से Q पे जाता है सर्कमफ्रेंस पे, और फिर Q से O पे. ठीक है, तो फिर अपने से क्या पूछा, अपने से बोला इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट्स. मेरे को टाइम दिया हुआ है पूरी ट्रिप का, तो मुझे दिया हुआ है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट. अगेन बात वही है ना कि वो ओ से चालू कर रहा है और ओ से चालू करके वापस ओ पे ही आ रहा है. तो हमको हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी पड़ती है 2 पॉइंट्स के बीच की, लेकिन वो ओ से चालू करके ओ पे ही आ रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गई. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना. उसने जहाँ से चालू किया था वो वापस घूम के वहीं पे आ गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा. फिर पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी के साथ. एवरेज वेलोसिटी अपने को पता होगा टोटल डिस्टेंस टेकन अपॉन टोटल टाइम. तो ये अपन निकाल लेते हैं. देखो फर्स्ट का आंसर तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा. ठीक है, सेकंड वाले के लिए अपने को निकालनी है एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ये होती है एवरेज वेलोसिटी. तो ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी. तो अपने को एवरेज वेलोसिटी बोला है, मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ. एवरेज स्पीड अपने से थर्ड पार्ट में पूछी है ना, तो उसको पहले थर्ड वाला कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड होती है ना डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई. ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो गई. सेकंड पार्ट का भी आंसर 0 ही होगा. तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पार्ट का आंसर भी 0 है. ठीक है, और थर्ड पार्ट की टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, ओपी प्लस वो जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो जो सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग है. ठीक है ना, प्लस क्यू दिस थिंग डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगा देते हैं. ठीक है, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. टोटल टाइम इज गिवन टू अस एज दिया होता है ना 10 मिनट्स. सो 10 मिनट्स कितने हो जाएंगे, 10 मिनट्स हो जाएंगे 10/60 सेकेंड, मतलब 1/6 सेकेंड्स. तो एक बार इसके लिए मैं 10 मिनट लिख देता हूँ. ठीक है,
तो फिर ये कितना हो जाएगा, ओपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू हो जाएगा अपना 1 किलोमीटर प्लस, देखो 1 किलोमीटर क्योंकि रेडियस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, लेकिन ये 2 पाई आर बाई 4 होगा क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल चल रहा है, तो ये हो जाएगा पाई r/2। तो पाई इंटू 1 किलोमीटर/2 मतलब पाई/2 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, पाई/2 किलोमीटर प्लस क्यू वापस 1 किलोमीटर। ठीक है, दिस होल थिंग डिवाइड बाई 10 मिनट्स। तो इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो रफली आएगा 21.43 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ, तो अच्छे करके अपन सॉल्व कर लेंगे। पहले दो पार्ट तो बहुत इजी था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज स्पीड के लिए अपन ने टोटल टाइम कर दिया। ठीक है, तो 3.9 भी हो गया। लेट्स मूव टू 3.10। क्या बोला है इसमें, On an open ground, a motorcyclist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meters. Okay. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. तो अपने को थर्ड, सिक्स्थ और एट टर्न पे डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। वो 500 मीटर चलता है। एक सेकंड, इसमें दिया हुआ है क्या, चलो बनाते हैं। देखो 500 मीटर चलता है, मान लो ऐसे गया, फिर वो टर्न लेता है कितने का, 60 डिग्री का, बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो मान लो 60 डिग्री वो मुड़ गया ऐसे करके, मतलब 60 डिग्री इन द सेंस ऐसे, तो ऐसे गया था, तो ये एंगल 60 है। ठीक है, फिर ये वापस 60 डिग्री मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर वापस 60 डिग्री मुड़ जाएगा, फिर वापस, फिर वापस, तो ऐसे करके वापस अपने पॉइंट पे आ जाएगा और एक हेक्सागन बन जाएगा, और ये सारे एंगल 60 डिग्री है। मतलब ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 60, ये सारे एंगल जो मैंने बनाए हैं, ये सारे एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये सारे एंगल 60 डिग्री है। तो मुझको बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटर इन द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट टर्न। तो देखो पहला मान लो यहाँ से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, या फिर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया है, इस पॉइंट को अपन लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो थर्ड टर्न पे काम हो जाएगा, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, तो तीसरा टर्न उसने यहाँ पे लिया, तो पाथ फॉलोड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट हेक्सागोनल पाथ होगा, उसने तीसरा टर्न यहाँ पे लिया है, तो अपने को तीसरे टर्न पर डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब वो यहाँ पे टर्न ले रहा है तब तक हमको डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस। मैंने बोला ना हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ता है। चलो इसको मैं थोड़ा मार्क भी कर देता हूँ ताकि आसानी समझ में आ जाए। ये A B C D E, ठीक है, तो थर्ड टर्न मतलब यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया OC वाला, ये वाला। ठीक है, तो और फिर क्या बोला है, फिर फोर्थ टर्न पे बोला है, और नहीं फिर सिक्स और एट टर्न पे बोला, थर्ड टर्न यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स यहाँ पे, सिक्स टर्न पे वापस जीरो हो जाएगा क्योंकि वापस नहीं पा जाएगा, फिर सेवेंथ, एट टर्न यहाँ पे, तो हमको सेकंड का आंसर तो जीरो ही अपने को दिख गया क्योंकि वो सिक्स टर्न में वापस ओपी आ रहा है, तो ओ से हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो अपने को बेसिकली ओसी और ओबी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड का आंसर तो जीरो हो जाएगा। के बाद ओसी और ओबी निकालना है ना, तो देखो ओसी अपन कैसे निकाल सकते हैं, अ, देखो ओसी निकालने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, अपने को पता है जो ओसी वेक्टर होगा वो ओबी प्लस बीसी वेक्टर होगा, ओसी वेक्टर इक्वल टू ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ये होता है हमेशा। और मेरे को पता है कि जो मेरा ये वाला एंगल है ये 120 है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
फिर जो मेरा ओसी वेक्टर होगा, जो मेरा ओसी वेक्टर होगा, दैट इज नथिंग बट ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2 ओबी बीसी कॉस थीटा का अंडर रूट। अब मैं ओबी कैसे निकालूं? ओबी क्या होगा? ओबी हो जाएगा, ओबी निकालने के लिए मान लो मैं कैसे बना लेता हूँ, तो इसके सेंटर पे आके गिर रहा है, इस पॉइंट को मान लो मैंने बोल दिया ई तक हो गया ना, एफ बोल देता है। ओबी हो जाएगा ओ एफ प्लस एफ बी, और मैं ओ एफ निकाल सकता हूँ क्योंकि ये एंगल मुझे पता है, मुझे ये एंगल पता है, ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है। तो मेरे को ये पता है कि ओ ए 500 मीटर है, ओ ए 500 मीटर है, तो मैं ओ एफ निकाल सकता हूँ। ओ एफ हो जाएगा 500 का कॉस कॉम्पोनेंट, ओ एफ हो जाएगा 500 कॉस 30, ओ बी हो जाएगा, ओ बी क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा 500 कॉस 30, और क्योंकि ये मिड पॉइंट पे आके गिरेगा तो ये भी 500 कॉस 30, कॉस 30 मतलब 1000 कॉस 30, तो ओ बी कितना हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा 1000 कॉस 30। तो चलो लिखते हैं, ओ बी हो जाएगा क्या हो रहा है, ओ बी हो जाएगा उसी एक मिनट, हम्म, एक मिनट, ओसी क्या हो रहा है? ओसी हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ बी बी सी, ओ बी बी सी का कॉस 120। ठीक है, तो ऐसे करके मैं निकाल लूंगा इसका अंडर रूट, मतलब इसका अंडर रूट, इस पूरे का प्लस आएगा, सॉरी, इस पूरे का अंडर रूट, दिस होल टू द पावर हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं इसको। हम्म, ठीक है, तो ऐसे करके अपन लोग निकाल सकते हैं। और मैंने वो भी निकाल दिया, वो भी है 2 टाइम्स ओ एफ, वो भी मैं लिख देता हूँ, ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ओ एफ, ओ एफ कितना हो जाएगा? 500 कॉस 30। ठीक है, तो ऐसे करके मैं ओ बी निकाल लूंगा, और मुझे बीसी तो पता ही है, बीसी 500 है, तो ऐसे करके मेरे पास ओसी आ जाएगा, और ओ बी मैंने निकाल लिया, तो मेरे को ओ बी और ओसी निकालने थे, तो मैंने करके निकाल लिया। फिर मुझे बोला कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर। टोटल पाथ लेंथ तो अपने को पता ही है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, हर पाथ की लेंथ 500 है, तो यहाँ तक की कितनी हो गई? 1500, यहाँ तक की कितनी हो गई? 1000, और पूरी तक की कितनी हो गई? पूरी हो गई 6 साइड हो गई, तो पूरी की हो गई 3000। फिर ऐसे करके अपन लोग रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये 60 डिग्री घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा हेक्सागन बना के, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3.11 पे, 3.11 पे चलते हैं। 3.11 क्या बोल रहा है? A passenger arriving in a new town wishes to go from a station to a hotel located 10 kilometers away on a straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 kilometers long and reaches the hotel in 28 minutes. What is the average speed of the taxi? Again वही बात,
अपने को एवरेज स्पीड पूछी है तो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टू टाइम टेकन, बस कहानी बना के अपने को टोटल पाथ लेंथ निकालनी है अपॉन टोटल टाइम टेकन करना है। तो टोटल पाथ लेंथ अपने को दी हुई है 23 किलोमीटर्स और टाइम अपने को दिया हुआ है 28 मिनट्स। तो बस अपने पास आंसर आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 23 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई 28 मिनट दिया हुआ है तो मिनट को सेकंड में निकल लेते हैं 28/60। ऐसे करके मैंने मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास समथिंग आएगा 49.3, मतलब मैंने मिनट को हाई में चेंज किया 49.3 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये तो होगी मेरी एवरेज स्पीड। तो मुझसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो चीज 10 किलोमीटर अवे थी उसी को कैब ड्राइवर 28 किलोमीटर घुमा के लेके गया है, तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट तो 10 किलोमीटर ही होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो टाइम तो 28 मिनट लिया है, तो 28 डिवाइड बाय 60, 28 28 डिवाइड बाय 60। सो यहाँ से अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 21.4 किलोमीटर्स पर हाँ। ठीक है, तो ये अपना आंसर जाएगा। और देखो अपन इसमें एक चीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगी क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में ली गई है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग ली गई है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग ली गई है। तो ये अपना क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 3.12 पे। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 किलोमीटर्स हाई। सीलिंग 25 किलोमीटर्स, एक मिनट, हाँ, द सीलिंग ऑफ लॉन्ग हॉल इज 25 किलोमीटर्स हाई। सीलिंग है किसी हॉल की वो 25 किलोमीटर्स हाई है। फिर पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है जो अपन ने कल किया था। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन, इसमें अपने को मैक्सिमम हाइट दी हुई है तो अपन सीधे सीधे प्रोजेक्टाइल मोशन का हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता था, हाइट इज इक्वल टू, मैंने बताया था वी मैक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगा देंगे। अपने को हाइट दी हुई है, मैक्सिमम दी हुई है हाइट, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना पड़ेगा, अपने को हाइट दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, अपने को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h इंटू 2g। तो 2 इंटू h 25 इंटू g को अपन लोग ले लेते हैं 9.8 डिवाइड बाई वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर जाएगा 40 इंटू 40। तो यहाँ से अपने पास आंसर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का, समथिंग अराउंड 0.3065। तो यहाँ से अपन लोग साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5534। ठीक है, अब साइन थीटा आ गया अपने पास, तो अपन लोग आराम से, अपने को क्या पूछा था, अपने को पूछिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब अपने को रेंज निकालनी है। तो रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है, मैंने कल बताया था। तो यहाँ से अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो मतलब साइन ऑफ, वहां से अपन लोग थीटा निकाल लेंगे। थीटा आएगा, थीटा अपना आ जाएगा 33.6 डिग्री। अपने को करना साइन 2 थीटा, तो वो हो जाएगा 67.2 डिग्री। दिस होल थिंग डिवाइड बाई जी, जी कितना है 9.8। तो यहाँ से अपन जब सॉल्व करेंगे
तो अपने पास फाइनल रेंज का आंसर आ जाएगा 150.5 मीटर्स अप्रॉक्स। ठीक है, तो क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया। सबसे पहले अपने को हाइट दी हुई थी, तो अपन ने हाइट का फॉर्मूला लगा के एंगल निकाला कि अपन ने किस एंगल पर थ्रो किया है, तो इस एंगल से अपन ने रेंज निकाल दी। सो फेयरली सिंपल क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meters. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? अपने को मैक्सिमम रेंज दी हुई है इसकी, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही सवाल है। चलो करते हैं। क्या बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन है? 3.13। उसमें अपने को बोला है, अपने को आर मैक्स दिया हुआ है, कितनी दूर तक वो फेंक सकता है, कितनी दूर तक, 100 मीटर तक। तो आर मैक्स अपने को पता है, आर मैक्स क्या होता है। अब अपने आर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम क्या होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, तो आर मैक्स हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी के बराबर। तो यहाँ से अपन लोग भी निकाल लेंगे, क्योंकि जी अपने को पता होता है कितना होता है, ये इसकी जरूरत नहीं है, काम करते हैं। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है क्रिकेटर कैन थ्रो, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो वो क्रिकेटर कितनी ऊंची फेंक सकता है, ये अपने को निकालना है। तो देखो जब वो बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके नीचे आएगी वापस, तो उस एक पॉइंट के लिए बॉल को टर्न होना पड़ेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अपन सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये होती है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को करते हैं 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपन ने निकाला है, वो है 100g इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जी मल्टीप्लाई बाई एस अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एस कितना आ गया, यहाँ से अपने पास एस आ गया 50 मीटर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि जी नेगेटिव होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अपन ने पहले आर मैक्स दिया हुआ था, आर मैक्स से अपन ने इनिशियल वेलोसिटी निकाली, फिर अपने को दिया हुआ था कि कितनी ऊपर जा सकती है, कितनी टॉप पॉइंट तक, किस टॉप पॉइंट तक पहुंच सकती है, अपने को वो निकालना था। तो वो निकालने के लिए अपन ने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, वहां से अपने पास एस आ गया। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? तो ये क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3.14, देखो इसमें क्या बोला है, इसमें मेरे को रेडियस दिया हुआ है कितना, 80 सेंटीमीटर। इतना मेरा रेडियस मैं लिख सकता हूँ 0.8 मीटर्स। ठीक है, तो ये मेरा रेडियस, फिर मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दी हुई है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, मतलब 14 अपॉन 25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये होगी मेरी वेलोसिटी। तो अपन को पता है, मैंने कल आपको बताया था कि जो अपनी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, ओमेगा होती है, या फिर नहीं नहीं मतलब ये वेलोसिटी में मुझे निकल गया, फ्रीक्वेंसी हो गया ना, क्योंकि ये अपन स्पीड थोड़ी ले रहे हैं, ये तो ले रहे हैं कितने रिवोल्यूशन कितने सेकंड में हुआ, तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हुई, वेलोसिटी नहीं हुई। तो अपन को अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना, एंगुलर वेलोसिटी निकालने, कैसे निकालें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी कैसे निकालें, हाँ इससे निकालेंगे 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना कि अगर अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है और मेरे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी जो कि है 14/25। तो वहां से अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 88/25 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो अपन आराम से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अपने से वही पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन, और ये मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है तो उस पर एक एक्सीलरेशन लगता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी से अपन ने निकाल लिया एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी से अपन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने कल बताया था, AC इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर टाइम्स रेडियस। कितना हो जाएगा 88 का 88 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, और आर अपने को कितना दिया हुआ था 0.8 मीटर। तो अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने पास फाइनल आंसर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा समवॉट अराउंड 9.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स लगानी थी अपने को। सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सिर्फ उस चीज को यूज करना था और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.15 पे। क्या बोल रहा है, An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 kilometer per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. अगेन सिंपल क्वेश्चन, अपने को रेडियस दिया हुआ है, अपने को वेलोसिटी दी हुई है, तो अपन वेलोसिटी से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v² से। v² अपने निकाल लेंगे, अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पता है, अपन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो ऑलरेडी कर सकते हैं। रेडियस 1 किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है 900 किलोमीटर पर आवर, तो 900 को अपन लोग चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो वो आ जाएगा 250 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²r, मतलब 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 मीटर क्योंकि 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो वो आ जाएगा समथिंग अराउंड 62.5। तो अपने को बस 62.5 को 9.8 से डिवाइड करना है, अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.16 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3.16, 3.16। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें मेरे को बोला है कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट व्हाट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। The net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the center. ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ये चीज सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। अगर सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड होगा जिसमें अपनी स्पीड भी चेंज हो रही होगी, तो मतलब वेलोसिटी तो चेंज होती है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी, हो रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ स्पीड भी चेंज हो रही है तो फिर वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो फिर उसमें जो अपनी नेट एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंट्रीपिटल डायरेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा उस केस में स्पीड को बढ़ाने के लिए एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर तो फॉल्स हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज इट होल्ड्स ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ इन केस स्पीड इज आल्सो चेंजिंग सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल आल्सो कम। ठीक है, तो ए वाला तो फॉल्स हो गया। बी वाला देखते हैं। बी में बोल रहा है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट द पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पार्ट ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ऑब्वियसली ट्रू है, बिकॉज जब भी किसी हम सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल को लीव करते हैं, पार्टिकल हमेशा सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियली तो मूव करता है। जैसे कि मैं बना के दिखाऊंगा आपको, तो मान लो ये अपना सर्कल है। ठीक है, ये अपना सर्कल है। ठीक है, तो मान लो उस पर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो वो पार्टिकल टेंजेंशियली मूव करेगा यहाँ पे ऐसे, जो पार्टिकल यहाँ पे है वो ऐसे मूव करेगा टेंजेंशियली, जो पार्टिकल यहाँ पे है वो ऐसे मूव करेगा टेंजेंशियली, मतलब ऐसे, जो पार्टिकल यहाँ पे है वो ऐसे मूव करेगा टेंजेंशियली, तो वैसे ये वाला पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। सब पार्टिकल्स टेंजेंशियली मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो अपना बी पार्ट तो ट्रू हो गया। बी पार्ट तो ट्रू हो गया।
what is happening? ठीक है, तो बी पार्ट ट्रू हो गया। What happened to the font? वेट करते हैं अपन, इस पे आते हैं। बी पार्ट हो गया ट्रू। ठीक है, सी में क्या बोला मुझसे? सी में मुझसे बोला है the acceleration of vector of a particle in uniform circular motion averaged over one cycle is null vector। obvious सी बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। तो अगर हम उसको पूरे सर्कल में घूम जाएगा, पूरे सर्कल में घूमने के बाद अपन जब उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेट एक्सेलरेशन जीरो ही आएगा। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद टाइम। सो रिजल्टेंट सब वेक्टर्स का जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर ऐसे होगा सेंटर की तरफ, उसके लिए वेक्टर ऐसे भी होगा। मतलब अगर मैं बना के दिखाऊं, मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, तो उस पर एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, तो वो पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो उस पर एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, तो ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे। जब यहाँ पे हो तो एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, तो यहाँ पे होगा तो एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, तो ये दोनों भी कैंसिल कर जाएंगे। ऐसे करके सारे वेक्टर्स कैंसिल कर जाएंगे और नेट जो है जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा ट्रू। सो लेट अस राइट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी, आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? 3.17 में अपने को पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और अपने को निकालना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ। तो चलो करते हैं। देखो कैसे होगा। जो अपने को आर दिया हुआ है उससे अपने को वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है। वेलोसिटी होता है dr/dt। ठीक है, तो अपने को आर दिया हुआ है 3t - 2t² + 4। 3t का डिफरेंशियल आएगा 3 - 2t² का हो जाएगा -4t -4t, और 4 का तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3i कैप -4t j कैप। 3i कैप -4t j कैप, ये अपना हो जाएगा वेलोसिटी। और वही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3i का तो हो जाएगा 0, बस -4 बचेगा। क्या हो जाएगा? -4 j कैप। ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मैंने वेलोसिटी भी निकाल ली। फिर मुझसे पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स। तो मैग्नीट्यूड सिंपली निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 2 seconds is equal to 3i minus 4 × 2 = 8 j। ये मेरी वेलोसिटी होगी। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड जाएगा √3² + 8², मतलब 64 + 9। 64 + 9 is √73। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? √73। ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब मुझे निकालना है एंगल। एंगल मैंने आपको बताया था, एंगल इज इक्वल टू y/x। ऑब्वियस सी बात है, मतलब -8 is the y component and x is
x component is 3, so -8/3 ये हो जाएगा tan थीटा, मतलब tan ऑफ एंगल, ये tan ऑफ एंगल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan ऑफ एंगल -8/3। तो यहाँ से जब अपन लोग एंगल निकालेंगे तो अपने पास एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -8/3, tan इनवर्स ऑफ -8/3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग अराउंड 69.44 69.44 डिग्रीज, ठीक है। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा क्योंकि अपना एंगल नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी मैं लिखता हूँ फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस। अगर एंगल पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव एक्सिस होता, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 3.17 भी कर लिया। फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्या बोला है, एक मिनट, अच्छा a particle starts from the origin at t equal to 0 seconds with a velocity of 10 j meter per second, moves in the xy plane with a constant acceleration of this much. So at what time is the x coordinate of the particle 16 meters? x coordinate 16 meters कब होगा, ये अपने से पूछा है ना। ठीक है, सिंपल है, ये भी कर लेते हैं। अपने को सीधे सीधे क्वेश्चन तो मुश्किल लिखनी है, लेकिन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। मैं लिखता हूँ s is equal to ut plus half at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें कोई एक्स डायरेक्शन लिखना, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, अपने को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 16 इज इक्वल टू, अपने को इनिशियल वेलोसिटी तो 0 एक्स डायरेक्शन में प्लस हाफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपने को निकालना है, तो टाइम स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करने पे अपने पास टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम की वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पे आ जाएगी 2 सेकेंड्स। पहले सिंपल टाइम निकल गया है, तो अपने को निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जाएगा जो इनिशियल y कोऑर्डिनेट है जो कि 0 है, प्लस वापस वो ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन कितनी दी हुई है, 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 2 प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन हो जाएगा, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन को दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन को दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है 2 जूल्स है। तो मल्टीप्लाई बाय 2j मतलब इन y डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर, और t कितना दिया हुआ है, t है 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से अपने पास फाइनल आंसर y के लिए आ जाएगा 24 मीटर्स। कुछ नहीं किया, पहले मैंने x डायरेक्शन लगाया, फिर मैंने y डायरेक्शन लगाया, और वहां से अपने पास फाइनल आंसर आ गया। फिर मुझसे क्या पूछा है, फिर मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उस टाइम पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल की स्पीड इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है। तो पहले vx निकाल लेता हूँ, vx कितना हो जाएगा, vx हो जाएगा ux प्लस axt, ux है 0, a है ax है 8, t है 2, तो मेरे पास vx हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। और सिमिलर नोट में vy निकाल लूंगा, vy हो जाएगा uy इनिशियली है 10 प्लस एक्सेलरेशन है 2, टाइम भी है 2, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। और मेरी नेट वेलोसिटी हो जाएगी, नेट वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वहां से अपन लोग नेट वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे में अपन ने 3.18 भी कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, so next question 3.20,
तो इसमें क्या बोला अपने से बोला फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन स्पेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। ठीक है, ये अपने को बताना है। v is equal to half vt1 plus vt2। ये वेलोसिटी एवरेज नहीं, ये हमेशा नहीं होगी, ये तभी होगा जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ, ये तो हो गई, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो बी करेक्ट है, ए फॉल्स है, क्योंकि ए सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होल्ड करेगा, जो अपने को दिया हुआ नहीं है। सी में दिया हुआ है वी टी इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, ये भी गलत है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होल्ड करेगा बस। डी में दिया हुआ है, डी में भी ए आ गया, तो डी में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होल्ड करेगा, डी भी फॉल्स हो गया। ई दिया हुआ है एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ऑब्वियस सी बात है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है। तो सिर्फ बी और ई करेक्ट है। बी एंड ई आर ओनली करेक्ट, रेस्ट होल्ड ट्रू only in case of uniform acceleration। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं 3.21 में। इसमें बोला है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस if it is true or false। A scalar quantity is one that is conserved in a process false। काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है, लेकिन वो, इसका एग्जांपल नहीं हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है लेकिन वो इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा कंजर्व रहे, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है लेकिन वो इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती, इसलिए ए तो फॉल्स है। बी वाले में बोला है कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, ये भी फॉल्स है। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यूज दे सकती है, स्केलर मतलब होता है कि नंबर हो, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। फिर सी में मुझसे बोला है कि मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये भी गलत है। कोई भी क्वांटिटी ले लो, लेंथ टाइम मास सबकी डायमेंशन होती है। मास की केजी, केजी मतलब एम हो जाएगी, टाइम की टी हो जाएगी, लेंथ की एल हो जाएगी। तो ये भी फॉल्स है। डी में क्या बोला, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, ये भी फॉल्स है यार। तुम स्पीड में चेंज कर रहे हो, स्पीड एनर्जी हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज होती है। आप अभी नीचे खड़े हो, फिर आप ऊपर जाके खड़े हो जाओगे तो आप में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पहले पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, तो ये भी गलत है। हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस। हाँ ट्रू है, ये बस एक यही ट्रू है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ऑब्जर्वर डिपेंड ही नहीं करती। स्केलर क्वांटिटी चाहे आप कोई भी ओरिएंटेशन एक्सेस का, स्केलर डायरेक्शन तो मैटर नहीं करता ना स्केलर पे। स्केलर पे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप किसी भी ओरिएंटेशन से देख लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगी। अगर यहाँ पे अपन लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ये चीज फॉल्स होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में अपने को डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है, लेकिन स्केलर के लिए तो ये ट्रू है। तो इसमें आंसर सिर्फ ई पार्ट ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। ठीक है, तो मैंने रीजन बोल दिए हैं, तो इसको सुन लेना। ओनली ई इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से अपन 3.21 भी हो गया। फिर अपन लोग चलते लास्ट क्वेश्चन पे। An aircraft is flying at a height of 3,400 meters above the ground. If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of the aircraft? No time taken by the aircraft. Okay. तो देखो, जो मेरा एयरक्राफ्ट है वो 300 मीटर्स 3400 मीटर्स पे ट्रेवल कर रहा है। If the angle subtended from a ground observation point by the aircraft positions 10 second apart is 30 degree, मतलब मान लो मेरा प्लेन यहाँ से यहाँ आ गया, इनिशियली वो ए पे था और वो बी पे आ गया, और मान लो मेरी ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे कहीं पे है। तो मैं यहाँ पे दिख रहा था, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो जो ये एंगल में चेंज हुआ है ना, ये मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है।
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की 3400 है। तो मुझे स्पीड बतानी है एयरक्राफ्ट की। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको आधे में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये एंगल 15 डिग्री हो जाएंगे। फिर अपने को स्पीड बताने के डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा टाइम दिया हुआ है, तो अगर मेरे को ए बी डिस्टेंस मिल जाएगी तो मेरे पास आराम से टाइम भी आ जाएगा, स्पीड भी आ जाएगी। तो अपने को एबी डिस्टेंस निकालनी है। एबी डिस्टेंस निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, एसी डिस्टेंस निकालता हूँ। एसी में निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को ओसी पता है। ओसी पता है, मेरे को पता है कि मेरा ये एंगल 15 डिग्री है। ये एंगल 15 डिग्री मुझे दिया हुआ है, तो मैं आराम से एसी निकाल सकता हूँ। एसी हो जाएगा, एसी कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा ओसी का 10-15। एसी इज इक्वल टू ओसी 10-15। और ये आपका ओसी अपने को दिया हुआ है 3400, तो ओसी 10-15 करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 910.86 मीटर्स। ठीक है, अपने को निकालना है ए बी, तो अपने को स्पीड निकालनी है ना, तो स्पीड हो जाएगी ए बी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। टाइम अपने को दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से अपन निकालेंगे ए बी हो जाएगा 2 इंटू ए सी, मतलब 2 इंटू 910.86 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, फाइनल आंसर आ जाएगा 182.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो, मोशन इन प्लेन चैप्टर बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, सर्कुलर मोशन के, प्रोजेक्टाइल मोशन के, और स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। और बेसिकली इसमें आपने जो पढ़ा हुआ है वही चीजें आती हैं, बस एक डायरेक्शन वाली चीज ऐड हो जाती है। बाकी क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देख लेना। सो आई होप you understood it. Thank you.